Ya hak! Ya hak! Allahu Ekber! السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا، الپ ارسلان صاحب اور ان کے سپاہیوں نے گورنر ویلینس اور ان کے دستوں پر حملہ کر دیا تھا اور جنگل میں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے والینس کہتا ہے تم اپنے انجام سے بھاگ نہیں سکتے عثمان۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں تو پھر تم بھی بھاگ نہیں سکتے والینس کافر۔ والینس کہتا ہے نہیں عثمان، میری فوج پورے بازنطین میں سب سے مضبوط ہے، تمہارے بنائے ہوئے منصوبوں میں سے کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کرے گا عثمان۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ ہاں سپاہیوں، ہم بازنطین پر رکھی ہوئی انکیں نکال لیں گے۔ میرے فوجیوں، آج جیت ہماری ہوگی۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں ہمارے تیر ہمیشہ تمہارے سینے میں گھستے رہیں گے کافروں، ہماری نظریں ہمیشہ تمہاری زمینوں پر رہیں گی، فتح ہمیشہ ترکوں کی ہوگی۔ سپاہیوں حملہ کر دو۔ پھر وہ سب کافروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان ایک خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر طرف لڑائی کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے مسلسل بازنطین اور صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر رہے تھے۔ بالا خاتون اور تمام باجیان بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کافروں پر وار کرتے ہوئے انہیں ختم کر رہے تھے۔ اسی دوران ایسٹریگن خاتون بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، وہ غصے میں تھی۔ تو پھر بالا پوچھتی ہیں آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں ایسٹریگن خاتون؟ ایسٹریگن کہتی ہیں میں نے سوچا تھا کہ نعمان واحد غدار ہے، لیکن پتہ چلا کہ دنیا پوری ہی ہمارے خلاف ہے بالا خاتون۔ بالا کہتی ہیں ایسٹریگن، میں نے آپ کو بتایا تھا سرحدوں کا نظام مختلف ہے۔ چلو، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں ختم کرنے لگتے ہیں۔ پھر آئیکوت کہہ رہا تھا بیڑیوں کے میدان میں آتے ہی گدڑ بھاگ جاتے، ہاں کدھر بھاگ رہے ہو تم؟ سالوگور آغا کہتے ہیں تم شیر کو پنجرے میں نہیں ڈال سکتے، اسے توڑ کر باہر نکل آئے گا، ادھر آؤ کافروں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لڑنے لگتے ہیں۔ لڑائی کے دوران عثمان صاحب اور گورنر ویلینس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو عثمان صاحب فرماتے ہیں والینس ہاں؟ والینس کہتا ہے تم سمجھ جاؤ گے عثمان، بازنطین تمہیں تباہ کر دے گی، تم جان جاؤ گے عثمان۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، آؤ آ کر سمجھاؤ۔ یہ سن کر والینس عثمان صاحب پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب بھی بہادری کے ساتھ والینس سے لڑنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عثمان صاحب ایمان کی طاقت سے لبریز تھے اور مسلمان تھے، وہ والینس پر حاوی پڑ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب غصے میں فرماتے ہیں تم سمجھ جاؤ گے والینس کافر، ہم ہمیشہ بازنطین کو شکست دیں گے، تم یہ جان جاؤ گے۔
वालियंस कहता है तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान, बाजिंतीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। उस्मान साहब फरमाते हैं जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो तुम पूरी दुनिया की तरह समझ जाओगे कि बाजिंतीन को शिकस्त हो चुकी है। फिर वो दोबारा लड़ने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब बहादुरी के साथ लड़ते हुए वालियंस को नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वालियंस जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उस्मान साहब जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाते हैं तो इतने में वहां पर देकर बाजिंतीन कमांडर पहुंच जाते हैं और वो उस्मान साहब से लड़ने लगते हैं और उस्मान साहब भी उनसे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। फिर लियो कमांडर वालियंस के पास आते हैं। वालियंस कहता है लियो, हम बुरसा वापस जा रहे हैं। लियो कहता है हम अभी भी जीत सकते हैं जनाब। वालियंस कहता है कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं मैं जानता हूँ लियो, हम वापस जा रहे हैं। यह कहकर वालियंस अपने कुछ कमांडरान और सिपाहियों के साथ वापस बुरसा की तरफ फरार होने लगते हैं। फिर वालियंस जब अपने घोड़े पर सवार हो जाता है तो वो उस्मान से कहता है मैं वापस आऊंगा उस्मान, तुमने एक वार किया, मैं हजारों वार करूंगा। यह कहकर वो वहां से फरार होने लगते हैं। ये देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फरमाते हैं तैकफुर भागो, जहां भाग सकते हो भागो, तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। फिर उरहान भी अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और गवर्नर वालियंस के पीछे चले जाते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं बायसंगुर और तुरहान, उरहान के पीछे जाओ। फिर वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। इसी दौरान बाइंदर साहब कह रहा था तुम हमारे घर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते कमांडर, ये हमारी सरजमीन है अहमक। बाइंदर साहब के सामने जो कमांडर था उस कमांडर का नाम कमांडर सुलांस होता है, जो कि एक सबसे बड़ा कमांडर था। फिर बाइंदर साहब और कमांडर सुलांस के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन बाइंदर साहब बहादुरी के साथ लड़ते हुए उसे नीचे जमीन पर गिरा लेते हैं और उस पर अपनी तलवार रखकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उस्मान साहब की तरफ ले आते हैं। इधर उस्मान साहब और उनके सिपाही भी बायफ्यूज के मकाम पर बाजिंतीन के तमाम सिपाहियों और कमांडरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और इन सब का खात्मा कर देते हैं। फिर बाइंदर साहब और कमांडर उस्मान साहब के सामने पेश करते हैं। उस्मान साहब के करीब आते हैं और अपनी तलवार लेकर उसके गर्दन पर रखते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं तो जिस सरजमीन पर तुम हमें मारने आए हो हाँ, वो तुम्हारी मजार होगी। सुलांस कहता है तो हम इस सरजमीन पर एक साथ होंगे उस्मान। उस्मान साहब फरमाते हैं लेकिन एक फर्क के साथ, तुम मुर्दार होंगे, हम शहीद होंगे। यह कहकर उस्मान साहब अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कमांडर सुलांस का सर वहीं पर कलम कर देते हैं। फिर उस्मान साहब फरमाते हैं सिपाहियों, ये जो कश्तियां लाए थे उनसे माल गनीमत इकट्ठा करो, अभी हम कोइनिसार जाएंगे। फिर वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें कोइनिसार किले का मंजर सामने आता है, जहां पर एवाज और बाकी सरदारान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कोइनिसार के बड़े दरवाजे को तोड़ रहे थे ताकि वो अंदर दाखिल होकर काफिरों से लड़ सके और कोइनिसार के फतह कर सके, जैसा कि उस्मान साहब ने हुक्म दिया था। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर की तरफ से बाजिंतीन सिपाही उन पर तीरों की बारिश कर रहे थे, लेकिन मुसलमान सिपाही डालों की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो भी जवाबी पार करते हुए तीरों से उन्हें नीचे गिराने लगते हैं। अंदर कोइनिसार का गवर्नर एक बड़ी फौज लेकर उनका मुंतजिर था कि जैसे ही मुसलमान अंदर दाखिल हो जाएंगे वो उन पर हमला करेंगे और इन सबको खत्म करेंगे। इधर वालियन साउंड के सिपाही अपने घोड़ों पर एक जगह पहुंच जाते हैं तो उरहान तुरहान और बायसंगुर भी उनके पीछे आ जाते हैं। वालियंस कहता है फौजियों हमला करो, हम बुरसा वापस जा रहे हैं। फिर वहां पर मौजूद कुछ बाजिंतीन सिपाही उरहान तुरहान और बायसंगुर से लड़ने लगते हैं और लियो कमांडर और तैकफुर वालियंस वहां से फरार हो जाते हैं अपने घोड़ों पर। उरहान अपने सिपाहियों के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए तमाम बाजिंतीन सिपाहियों को खत्म करते हुए उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर उरहान कह रहा था तैकफुर वालियंस, आज तुम्हारी जान बच गई, लेकिन जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी जान भी और बुरसा भी लूंगा। फिर तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ है। इधर तमाम सरदारान अपने सिपाहियों के साथ कोइनिसार किले के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहां पर उस्मान साहब और उनके सिपाही भी पहुंच जाते हैं, वो भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुसलसल मेहनत करने के बाद थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं, कोइनिसार का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक बड़ी तादाद लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां पर मौजूद कोइनिसार के गवर्नर और उनके बाजिंतीन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। फिर हमें हर तरफ लड़ाई का मंजर सामने आता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते हुए काफिरों को जहन्नम वासिल करने लगते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आप कुर्लुस उस्मान सीजन 4 और अल परसलान सीजन 2 के मजीद एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं
تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا، الپ ارسلان صاحب اور ان کے سپاہیوں نے گورنر ویلینس اور ان کے دستوں پر حملہ کر دیا تھا اور جنگل میں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے، والینس کہتا ہے، تم اپنے انجام سے بھاگ نہیں سکتے عثمان۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں، تو پھر تم بھی بھاگ نہیں سکتے والینس کافر۔ والینس کہتا ہے، نہیں عثمان، میری فوج پورے بازنطین میں سب سے مضبوط ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے منصوبوں میں سے کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کرے گا عثمان۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ ہاں سپاہیوں، ہم بازنطین پر رکھی ہوئی انکیں نکال لیں گے۔ میرے فوجیوں، آج جیت ہماری ہوگی۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں، ہمارے تیر ہمیشہ تمہارے سینے میں گھستے رہیں گے کافروں۔ ہماری نظریں ہمیشہ تمہاری زمینوں پر رہیں گی۔ فتح ہمیشہ ترکوں کی ہوگی۔ سپاہیوں، حملہ کر دو۔ پھر وہ سب کافروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان ایک خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر طرف لڑائی کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے مسلسل بازنطین اور صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر رہے تھے۔ بالا خاتون اور تمام باجیان بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کافروں پر وار کرتے ہوئے انہیں ختم کر رہے تھے۔ اسی دوران ایسٹریگن خاتون بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، وہ غصے میں تھی۔ تو پھر بالا پوچھتی ہیں، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں ایسٹریگن خاتون؟ ایسٹریگن کہتی ہیں، میں نے سوچا تھا کہ نعمان واحد غدار ہے، لیکن پتہ چلا کہ دنیا پوری ہی ہمارے خلاف ہے بالا خاتون۔ بالا کہتی ہیں، ایسٹریگن، میں نے آپ کو بتایا تھا، سرحدوں کا نظام مختلف ہے۔ چلو، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں ختم کرنے لگتے ہیں۔ پھر آئیکوت کہہ رہا تھا، بیڑیوں کے میدان میں آتے ہی گدڑ بھاگ جاتے، ہاں کدھر بھاگ رہے ہو تم؟ سالوگور آغا کہتے ہیں، تم شیر کو پنجرے میں نہیں ڈال سکتے، اسے توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ادھر آؤ کافروں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ لڑنے لگتے ہیں۔ لڑائی کے دوران عثمان صاحب اور گورنر ویلینس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو عثمان صاحب فرماتے ہیں، والینس، ہاں؟ والینس کہتا ہے، تم سمجھ جاؤ گے عثمان، بازنطین تمہیں تباہ کر دے گی، تم جان جاؤ گے عثمان۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں، ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، آؤ آ کر سمجھاؤ۔ یہ سن کر والینس عثمان صاحب پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب بھی بہادری کے ساتھ والینس سے لڑنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عثمان صاحب ایمان کی طاقت سے لبریز تھے اور مسلمان تھے، وہ والینس پر حاوی پڑ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب غصے میں فرماتے ہیں، تم سمجھ جاؤ گے والینس کافر،
हम हमेशा बाजिंतीन को शिकस्त देंगे, तुम ये जान जाओगे। वालियंस कहता है, तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान, बाजिंतीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। उस्मान साहब फरमाते हैं, जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो तुम पूरी दुनिया की तरह समझ जाओगे कि बाजिंतीन को शिकस्त हो चुकी है। फिर वो दोबारा लड़ने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब बहादुरी के साथ लड़ते हुए वालियंस को नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वालियंस जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उस्मान साहब जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाते हैं तो इतने में वहां पर देकर बाजिंतीन कमांडर पहुंच जाते हैं और वो उस्मान साहब से लड़ने लगते हैं और उस्मान साहब भी उनसे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। फिर लियो कमांडर वालियंस के पास आते हैं। वालियंस कहता है, लियो, हम बुरसा वापस जा रहे हैं। लियो कहता है, हम अभी भी जीत सकते हैं जनाब। वालियंस कहता है, कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं, मैं जानता हूँ लियो, हम वापस जा रहे हैं। यह कहकर वालियंस अपने कुछ कमांडर और सिपाहियों के साथ वापस बुरसा की तरफ फरार होने लगते हैं। फिर वालियंस जब अपने घोड़े पर सवार हो जाता है तो वो उस्मान से कहता है, मैं वापस आऊंगा उस्मान, तुमने एक वार किया, मैं हजारों वार करूंगा। यह कहकर वो वहां से फरार होने लगते हैं। ये देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फरमाते हैं, तैकफूर भागो, जहां भाग सकते हो भागो, तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। फिर उर्हान भी अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और गवर्नर वालियंस के पीछे चले जाते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, बायसंगुर और तुरहान, उर्हान के पीछे जाओ। फिर वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। इसी दौरान बाइंदर साहब कह रहा था, तुम हमारे घर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते कमांडर, ये हमारी सरजमीन है अहमक। बाइंदर साहब के सामने जो कमांडर था उस कमांडर का नाम कमांडर सुलांस होता है, जो कि एक सबसे बड़ा कमांडर था। फिर बाइंदर साहब और कमांडर सुलांस के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन बाइंदर साहब बहादुरी के साथ लड़ते हुए उसे नीचे जमीन पर गिरा लेते हैं और उस पर अपनी तलवार रख ले और उस पर अपनी तलवार रखकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उस्मान साहब की तरफ ले आते हैं। इधर उस्मान साहब और उनके सिपाही भी बायफ्यूज के मकाम पर बाजिंतीन के तमाम सिपाहियों और कमांडरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और इन सब का खात्मा कर देते हैं। फिर बाइंदर साहब और कमांडर उस्मान साहब के सामने पेश करते हैं। उस्मान साहब के करीब आते हैं और अपनी तलवार लेकर उसके गर्दन पर रखते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, तो जिस सरजमीन पर तुम हमें मारने आए हो, हाँ, वो तुम्हारी मजार होगी। सुलांस कहता है, तो हम इस जमीन पर एक साथ होंगे उस्मान। उस्मान साहब फरमाते हैं, लेकिन एक फर्क के साथ, तुम मुर्दार होंगे, हम शहीद होंगे। यह कहकर उस्मान साहब अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कमांडो सुलांस का सर वहीं पर कलम कर देते हैं। फिर उस्मान साहब फरमाते हैं, सिपाहियों, ये जो कश्तियां लाए थे उनसे माल गनीमत इकट्ठा करो, अभी हम कोई निसार जाएंगे। फिर वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें कोयनिसार किले का मंजर सामने आता है, जहां पर एवाज और बाकी सरदारान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कोयनिसार के बड़े दरवाजे को तोड़ रहे थे ताकि वो अंदर दाखिल होकर काफिरों से लड़ सके और कोयनिसार के फतह कर सके, जैसा कि उस्मान साहब ने हुक्म दिया था। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर की तरफ से बाजिंतीन सिपाही उन पर तीरों की बारिश कर रहे थे, लेकिन मुसलमान सिपाही डालों की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो भी जवाबी पार करते हुए तीरों से उन्हें नीचे गिराने लगते हैं। अंदर कोइनिसार का गवर्नर एक बड़ी फौज लेकर उनका मुंतजिर था कि जैसे ही मुसलमान अंदर दाखिल हो जाएंगे वो उन पर हमला करेंगे और इन सबको खत्म करेंगे। इधर वालियन साउंड के सिपाही अपने घोड़ों पर एक जगह पहुंच जाते हैं तो तुरहान तुरहान और बायसंगर भी उनके पीछे आ जाते हैं। वालियंस कहता है, फौजियों, हमला करो, हम बुरसा वापस जा रहे हैं। फिर वहां पर मौजूद कुछ बाजिंतीन सिपाही उरहान तुरहान और बायसंगो से लड़ने लगते हैं
اور لیو کمانڈر اور تیکفور والیانس وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اپنے گھوڑوں پر۔